Hello, students. I welcome you all to E-Political Science. As you are going to face your Understanding Globalization paper in 1 or 2 days. So, most of you requested that, ma'am, part 2 कब आ रहा है? So, I said very soon, and then I got busy. So, just for your demand and your request, I could just take few times out, and then I have tried to put forth the important ideas of theories of global justice. Okay, वैश्विक न्याय पे ये डिस्कशन है. पहला पार्ट 1 में मैंने डेफिनेशन और ग्लोबल जस्टिस की अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट इट with globalization I had already explained, but since this global justice paper is a very topic is a comprehensive topic, so one cannot just understand in a very few you can say lectures, so it is very important that we need to elaborate it little more. So today we are going to discuss the थेरीज़. हम विभिन्न जो सिद्धांत हैं वैश्विक न्याय में वो हम डिस्कस करेंगे. मैंने आपके ही रिक्वेस्ट पे स्टूडेंट्स आई हैव ट्राइड टू मेक दिस वीडियो द स्लाइड्स प्राइमरीली इन बोथ द मीडियम. और वैसे भी मेरा जो लेक्चर होता है इस प्लेटफॉर्म में it is bilingual. I have mostly tried to bring things which are bilingual, and so it is benefited for both the mediums. और आप लोगों को कोई जो है डाउट नहीं होना चाहिए. अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं. And students, I would request you that if you have not yet subscribed this channel, please subscribe this channel, like it, and share with your friends in your groups, so that most of the students can benefit from these topics. Okay, so there are three primary approaches to global justice. First one is cosmopolitanism, second one is communitarianism, and the third one is neorealism. Now each of these views emphasize a different component in IR theory, and they have different solutions to the issue of inequality. While cosmopolitanism views individuals as members of a global society, communitarianism and neorealism adopt a state-centric view of global justice. Now, we are dealing with these three theories separately. पहले मैंने बताया कि ये तीनों views क्या हैं, and then we are trying to deal with these three theories separately. One thing more, please try to get hold of your first year books so that you can connect it with communitarianism, and in second year you had read about neorealism and all, so please connect it, otherwise you would forget it. So now cosmopolitanism is an approach, as the word specifies, clearly says cosmo. It focuses on the responsibility of individuals to act as a global citizen. Okay, the compulsion towards cosmopolitanism is grounded in two criteria. First one is a commitment to a universal community, and the second one is detachment from local or national affiliations. अब हम इसको हिंदी में समझते हैं क्या है. ठीक है, वैश्विक न्याय के लिए तीन प्राथमिक दृष्टिकोण हैं. पहला महानगरीयता, दूसरा समुदायवाद, तीसरा नव यथार्थवाद. ठीक है, इनमें से प्रत्येक विचार IR सिद्धांत, या हिंदी में IR जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत कहते हैं, और स्थिति में एक अलग घटक पर जोर देता है, असमानता के मुद्दे के विभिन्न समाधान के लिए. ठीक है, तो जबकि अगर हम देखें कि महानगरीयता या महानगरीयवाद व्यक्तियों को
उनके रूप में देखता है एक वैश्विक समाज। समुदायवाद और नव यथार्थवाद के सदस्य राज्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हैं न्याय के लिए। विश्वव्यापीवाद एक दृष्टिकोण के रूप में वैश्विक के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों की जिम्मेदारी पर केंद्रित है नागरिक। महानगरीयवाद के लिए अगर हम के प्रति बाध्यता दो मानदंडों पर आधारित है, एक सार्वभौमिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता और स्थानीय या राष्ट्रीय संबंधता से अलगाव। बेसिकली हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम वैश्विक न्याय को समझने की कोशिश करते हैं तो 3 संदर्भों में, जैसा पहले मैंने बताया आपको इंग्लिश में, फर्स्ट वन इज़ महानगरीयता, वहाँ आपको इंग्लिश में बताया कॉस्मोपॉलिटनिज्म। दूसरा मैंने बताया कम्युनिटेरियनिज्म, समुदायवाद। तीसरा न्यूरियलिज्म, दैट इज़ नव यथार्थवाद। अब ये तीनों अलग अलग चीज़ों पे फोकस करते हैं। महानगरीयता क्योंकि कॉस्मो से डील करता है तो यूनिवर्सलिटी की बात करता है, ठीक है। नव यथार्थ समुदायवाद एक विशेष समुदाय के वेलफेयर के लिए उनके बेनिफिट की बात करता है और उनसे रिलेटेड ही इश्यूज़ को डील करने की कोशिश करता है। और जो नव यथार्थवाद है वो ये कोशिश करता है कि जो स्टेट सॉवरेनिटी है या राज्य की संप्रभुता है उसके इर्द गिर्द या राज्य से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, चाहे वो सुरक्षा के मुद्दे हों, उससे रिलेटेड ये डिस्कशन करता है अगर हम नव यथार्थवाद को देखें। महानगरीयवाद के प्रति बाध्यता 2 मानदंडों पर आधारित है, जैसा मैंने आपको इंग्लिश में बताया, एक सार्वभौमिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता और दूसरा स्थानीय या राष्ट्रीय संबंधता से अलगाव। तो इस संदर्भ में भी हम जो है कॉस्मोपॉलिटनिज्म को देख सकते हैं। Then the second idea in English medium, like communitarianism, focus on moral obligations to members of particular community, and so they talk about particularity, as you must have read the idea of Michael Walzer, Michael Sandel, Charles Taylor, जो समुदायवाद की बात करते हैं और समुदाय के जो विशेष समुदाय हैं, चाहे हम डिप्राइव्ड ग्रुप्स की बात करें तो उनसे रिलेटेड जो है वेलफेयर की बात करते हैं, उनसे रिलेटेड न्याय की बात करते हैं। तो उनका आधार थोड़ा सा संकीर्ण है, थोड़ा लिमिटेड है, इसीलिए हम इसे पर्टिकुलैरिटी कहते हैं। द न्यू रियलिज्म has a strained relationship with the concept of global justice. Now strained does not mean that a relationship which is animical, but here it means that जो संबंध है वैश्विक न्याय के साथ वो बहुत ज़्यादा जो है क्लोज नहीं है, क्योंकि ये एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है। न्यूरलिज्म स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है स्टेट सॉवरेनिटी की बात करते हैं, तो इसीलिए भी जो वैश्विक न्याय का जो आधार है वो पूर्ण तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग में उस तरह से स्टेट के बियॉन्ड नहीं होता, इसलिए स्टेट के इर्द गिर्द होता है। सो विथ अ फाउंडेशनल एम्फेसिस ऑन स्टेट सॉवरेनिटी, द प्राइमेसी ऑफ द स्टेट एंड सिक्योरिटी अबव ऑल, इट लीव्स लिटिल मोटिवेशन फॉर मैग्नानिमिटी। अब क्योंकि चीज़ें बहुत संकीर्ण हैं, सुरक्षा है, राष्ट्रीय हित की बात है, यहाँ पे स्टेट की बात है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी तो न्यू रियलिज्म की जो रिलेशनशिप है ग्लोबल जस्टिस के साथ वो लिमिटेड हो जाती है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। तो यहाँ पे हिंदी में आप देखिए, समुदायवाद एक विशेष समुदाय के सदस्यों के लिए नैतिक दायित्व पर ध्यान केंद्रित करता है और इसलिए वे विशिष्टता के बारे में बात करते हैं। वैश्विक न्याय की अवधारणा के साथ नव यथार्थवाद का तनावपूर्ण संबंध है। एक नींव के साथ राज्य की संप्रभुता, राज्य की प्रधानता और सबसे ऊपर सुरक्षा पर जोर, यह बहुत कम छोड़ता है महानता के लिए प्रेरणा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि कम्युनिटेरियनिज्म क्या कहता है। न्यू रियलिज्म आपने शायद केनेथ वॉल्ट्स की थ्योरी पढ़ी ही होगी IR में। तो ये सारी है डिस्कशन ऑन ग्लोबल जस्टिस, और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि राइट डिस्कस डिफरेंट थेरीज ऑफ ग्लोबल जस्टिस, तो ये सारा लिखना है। या अगर आता है कि राइट एन एसे ऑन ग्लोबल जस्टिस, शॉर्ट नोट्स आता है, डेफिनेशन दीजिए ग्लोबल जस्टिस का, वैश्विक न्याय का, और उसके साथ बताइए कि
ये वैश्वीकरण की एक आलोचनात्मक परीक्षण है पूरा वैश्विक न्याय, क्योंकि ओवरऑल ये एक नॉर्मेटिव आइडिया है. ओके, सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर ऑन globalization, and where you have to just read global justice. You must be eagerly waiting for this global justice part 2. ये आपका ये प्लेटफॉर्म के लिए. तो अब आपके पास ये आ गया है, ये वीडियो आ गया है. नाउ इट इज़ अवेलेबल. आई होप यू वुड बी satisfied with this particular content, and if you have any doubt you can let me know. So take care, God bless you, have a nice day, thank you.